Maharaji, can you hear I can me? hear you. Acha, my video is suddenly gone, Yes, I can hear you. but the video has suddenly gone off. So Anyway, I'm reading it. okay, yes, very good. Om Jananing Sharadang Devi Ramakrishnam Jagadgurum Padupadme Tasitva Pranamami Muhurmuhu. Today's topic is examples of great men. Realized souls are realized souls are great instruments. After realizing the highest truth in life, some people engage themselves in selfless services. The Divine Mother used Sri Ramakrishna as an instrument. Though he was actually instructing many, he used to say that he was not giving any instructions. Actually, he felt that it was the Divine Mother who taught the devotees and disciples, using him as her instruments. Swami Vivekananda wanted to remain in Nirvikalpa Samadhi, but the master said he had some great work to do, and Sri Ramakrishna transferred all his power to him. Sri Ramakrishna used Swami Vivekananda as an instrument. These great lives show that we have to remain subject to God's will, and our greatest duty is to carry out his orders. There are some other great souls. When they are in tune with divine, they cannot perform any active work, but their mere existence and presence will bring forth spiritual vibrations which purify the mental and spiritual world. Ramakrishna used to say that after getting non-dual knowledge, one can do whatever one likes. When realized souls feel that their consciousness is one with the divine consciousness, they cannot do anything wrong. This is true freedom. Godlike men and incarnations. Supreme Spirit puts on a body, and that is an incarnation. God comes down to the world in a human form just to help the downtrodden. An ordinary jiva with the veil of Maya, when he has attained realization through sadhana, is called Jivan Mukta. But he cannot return to the ordinary plane of consciousness. But Ishwara Kotis like Narada and Sukha are born with the born for the good of the world, and hence they are able to function on ordinary plane with the higher knowledge and power of higher planes. Their knowledge is not hidden by Maya. They are above all limitations. Sri Ramakrishna to young Hari Maharaj that he could not endure the pain in his throat. But Hari replied, I cannot believe it. You are the embodiment of bliss. How can you feel any pain? Sri Ramakrishna protested, but Hari Maharaj could not concede the point. At last, Sri Ramakrishna laughed and said, you have caught me. Incarnations are always established in bliss and peace. Sri Ramakrishna's mind ever tends to return to the realm of blessedness, peace, silence. But in order to teach people, he has to bring his mind down to their level. Only Ishwara Kotis and incarnations come down to help the people and impart divine bliss to others and go back to their realm of their own sweet will. They are not born as a result of karma. Karma has no hold on them. But Jivan Mukta may have to experience or undergo certain difficulties as a result of his karma. Only incarnations can transform ordinary souls. They can undo the karma of others. Uniqueness of Sri Ramakrishna. Can ordinary persons understand the Lord? Lord incarnates as an ordinary man, but what a tremendous power manifests. What do we see here in Sri Ramakrishna? Once he goes to Divine Mother and fans her and talks to her. Again, we find him in a quite deep. He cannot walk on the grass. He cannot pluck a flower thinking that it is a part of the bouquet adorning the whole universe. A boatman is thrashed on the Ganges, and Sri Ramakrishna feels the pain on his body. How does it happen? He is one with the universe, one with Satchidananda. Shashi Maharaj used to say that the master was
experiencing tremendous ecstasy during his last days. When he went into Mahasamadhi, all his hairs were standing on end, indicating that he was experiencing great bliss. Swami Brahmananda said, "Who can understand Sri Ramakrishna? He was one moment in one plane, next moment in different plane. Only through his grace can we understand him." Sri Ramakrishna gave direct experience of the Supreme Being when he touched Narendranath. Sri Ramakrishna could not contain the joy and ecstasy within himself. He was eager to share it with others and was always in the lookout for proper persons. Swami Turiyananda had the glimpse of the highest truth when Sri Ramakrishna said, "Is it not that only Brahman is real and the world is unreal?" When Sri Ramakrishna touched Rakhal Maharaj, he saw that the visible universe was melting away. He got frightened and left his place of meditation. Rakhal Maharaj, with spiritual eyes, saw the divine presence. The master said, "Why did you leave your seat? You were eager to have this experience, yet you could not stand it even for a moment." I have this experience all the times. All this power was in that frail little frame. He was in tune with the cosmic power. Totapuri came and offered to teach him Vedanta and gave him sannyasa. Sri Ramakrishna experienced the totality of reality. Totapuri did not have the complete experience. He had not realized the immanent, inbuilt, inherent, inborn aspect of the reality, that is Adda Shakti. Afflicted by dysentery, he went to Ganga to drown himself. Then came the revelation of one spirit everywhere. Here the disciple became the guru of the guru. We cannot see the ultimate truth with this mind. To the extent we purify our mind, to that extent divine eye is open and he manifests himself. But we can keep up the thought that I am the Atman, or that the reality is very close to me and I am part of that. Theoretically, we have the capacity to realize the truth, but the mind is bound with limitations. The reality is within, but the mind has been turned outwards. How can it see the indwelling being when it does not look into that direction at all? The mind is always after lust, anger, hatred, jealousy. Clouds after clouds gather, and we complain that even after such a long period of sadhana, we have no visions. Always feeding our ego, always seeing evil in others. Without moral purity, none can progress. Master Mahashaya was astonished at Sri Ramakrishna's moods. When he came one day, the master was lost in ecstasy over Divine Mother. Another day, he was in Samadhi. Another day, he was cracking jokes with youngsters. Master was unpredictable. One never knew in what spiritual mood he would be. That is why Swami Vivekananda refused to write the master's biography. He said he did not know him fully. Many disciples saw him after his Mahasamadhi. Holy Mother saw him many times. When Girish was seriously ill in his youth, he saw Holy Mother. Can we understand anything? Just with the measuring tape of our minds, we try to measure these great ones. The only course is pray to the Lord, give us enlightenment, enlighten our consciousness. Mathur Babu had seen Kali and Shiva in Sri Ramakrishna. It was not in that little body of Sri Ramakrishna that he saw all this. The infinite spirit had manifested as Sri Ramakrishna. If you come to Sri Ramakrishna, you have to accept that any divine name and form will take you to the infinite and you cannot maintain any narrow outlook. Sri Ramakrishna used to say, if you think of me, you are thinking of God, because when I look within, I don't find anything but the infinite spirit in this body.
With each japa, we increase the power of mind. But we must use our willpower, unlike some who tell their beads but allow their minds to wander. One should do japa with full attention and continuously. Those who have done sadhana, they have a wonderful power of concentration. They can retain what they have learned. The life and message of Buddha. Buddha took a life of renunciation from self-indulgence to extreme austerity. His health broke down. Then he realized the need for the middle path. In due course, he attained illumination and lived a noble life of knowledge, renunciation, and compassion. He preached nothing new. What our ancient sages had preached, he made them living truths again in his time. Swami Shivananda and other disciples were fired with Buddha's spirit. They did not fully believe in a personal God. After passing away, the master once appeared before Mahapurush Maharaj and said, "The Guru is everything. There is nothing beyond him." Critics say that the Buddha attained a state of annihilation, nirvana. How can annihilation bring so much of joy and peace and compassion? Men in realization are very compassionate. It is the transcendental consciousness that made Buddha never to waver from compassion, sympathy, and love. From the standpoint of pure knowledge, one may ask, since the world is unreal, why should there be sympathy and compassion at all? Why should you help anyone? No doubt, the world seen physically is unreal. The physical personality is unreal, but behind such personality, there is a mind and soul. Till the mind is illumined, it is liable to be afflicted by sorrow. Seeing this sorrow in others, illumined soul try to remove it. Even though they themselves are beyond all sorrow, we should work in the world in this spirit. Sri Ramakrishna's Pranamastu. Very good, very good, very good, and very good. Now we begin with question answer. Kundu, do you have time? Yes, Maharaj. So ask the question. Maharaj, I have got two questions. Yes. One is, like we hear this terminology, Bhav Mukh. Now we read about it in Lila Prasanga also, but the concept is not very clear. Is it connected with Srishti or is it a particular stage in the flow of consciousness? It seems a unique state of existence, okay. And no other prophet exemplified this concept. Okay. That, of course, you cannot say because you have not read the Puranas and Tantras. We don't know what is described there. So we cannot make a statement that it is not described by others also. Anyway, what I have understood, what Leela Prasanga has told, I will try to explain. Mukha. Mukha means what? Mouth. Opening. Okay? You just understand? One is mukh. Mukh in a mouth, isn't it? Yes, Maharaj. Are you listening to me? Yes, Maharaj. So mukh is mouth. So from mouth something comes out. And this is the mouth of bhava. Bhava means ideas, principles. You know, in spiritual sense, there are Mahabhava is there, and Madhur Bhava is there, and Das Bhava is there. So many spiritual moods are there. So they are Bhava. And Mukha is from there, or the opening, the gate of Bhavas. So when Sri Ramakrishna attained Nirvikalpa Samadhi, after that Divine Mother told him, live in Bhav Mukha. You know, when you, अगर भाव निर्विकल्प समाधि में आप चले जाएंगे तो उसके वहां तो भाव वगैरह कुछ नहीं रहता. मधुर भाव, शांत भाव, दास्य भाव, ये सब कुछ जो है वो सब चला गया. तो उसके बाद में 21 दिन में शरीर छूट जाता है. लेकिन श्री रामकृष्ण को माँ जगदम्बा ने कहा कि तुम उस उच्छाई स्थिति में मत रहो, तुम थोड़ा सा नीचे रहो, ऐसे स्टेज पे रहो जहां से भाव आ सके. तो ये स्लाइटली लोअर लेवल देन
निर्विकल्प समाधि। मतलब यह है कि श्री रामकृष्ण वो भावमुख स्थिति में रहकर निर्विकल्प समाधि में भी जा सकते थे और बाहर भी आ सकते थे, और उनके थ्रू मधुर भाव, दास्य भाव, सांख्य भाव इत्यादि जो भाव थे, वो भक्ति के भाव जो हैं, वे आइडियाज, मूड्स, वो सब वहां से आ सकते थे। अब ये उसको इस प्रकार समझो, मैं उल्टी तरफ से बोल रहा हूँ। उदाहरण के लिए रात को हम जब सो जाते हैं गाढ़ी निद्रा में, डीप स्लीप, कुछ नहीं रहता वहां पे, लेकिन हम जब जागने लगते हैं सुषुप्ति अवस्था में, ये स्वप्नावस्था में, तो क्या होता है, कुछ भाव उठने लग जाते हैं। तो स्वप्नावस्था एक प्रकार की मानो कह सकते हैं भावमुख, यानी बिल्कुल विपरीत, वो अज्ञान का भावमुख है, वो है परम ज्ञान का भावमुख। तो इस प्रकार की एक स्थिति होती है जिसे भावमुख कहा जाता है, जहां पर निर्विकल्प समाधि का मुख है, जहां से भावों की उत्पत्ति होती है, और वहां पर अगर कोई महापुरुष रहे तो वो इच्छानुसार समाधि में चला जा सकता है और इच्छानुसार बाहर के जगत में विभिन्न भावों की अभिव्यक्ति भी कर सकता है। इज दैट क्लियर? हाँ महाराज, इसके मतलब दिस इज अ सोर्स फ्रॉम वेयर ऑल द प्रिंसिपल्स कम अप। Principles you may call it, ideas you may call it, emotional moods you may call, जो भी कह सकते हो, so many things, यानी जहां से manifestation होता है, and beyond that there is no manifestation. Okay महाराज। महाराज एक प्रश्न पूछूं, वो हिरण्यगर्भ से हम क्या रिलेट कर सकते हैं? हेलो भाई, हिरण्यगर्भ जो है वो कह सकते हैं, we might say that, हाँ ठीक है, एक प्रकार से कह सकते हैं उसको, हिरण्यगर्भ के साथ रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, ठीक महाराज। एंड एक और क्वेश्चन है महाराज, बोलो। This here it is told Rama is partial incarnation and Krishna is complete. तो इनकारनेशन जब हुआ वो फिर पार्शियल कैसे हो सकता है? या तो ज्ञान हो गया तो पूरा हो गया, या नहीं हुआ तो नहीं हुआ। अब भाई ये तो है ना, ये शास्त्र में लिखा हुआ है, एक श्लोक है, श्लोक में ये कहते हैं कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये एते अंश कला ये थे, यानी भागवत में ही है शायद, कि राम कृष्ण, राम और बाकी जितने अवतार हैं वो तो अंश है, कला है, लेकिन कृष्णस्तु भगवान स्वयं। अब भैया हम लोग क्या डिसाइड करेंगे, बोलो। अब तो राम कृष्ण अवतार आ गया तो उसको अवतार वरिष्ठ बोल दिया। अब अवतार वरिष्ठ और पूर्णावतार और अंशावतार, ये चंदन अवतार जो है वही कर सकता है डिसाइड, और तो कोई नहीं कर सकता। कौन करेगा बाबा? ये कोई पॉइंट है जिसके ऊपर डिस्कस हो सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। ठीक मान, करना भी नहीं चाहिए उसको। नहीं, बिकॉज कथामृत में भी तो ठाकुर पूछते हैं कि मुझे मतलब क आना হয়েছে, মাস্টার মশাইকে বলছে কেমন বুঝছো ক আনা হয়েছে, লাইক দোজ থিংস ইজ ডিফিকাল্ট টু আন্ডারস্ট্যান্ড। আমাদের তো জিজ্ঞেস করেননি, আমরা কেন বিরক্ত হবো? हम लोग को तो वो नहीं पूछा है तो हम क्यों चिंता करें उसके बारे में भाई। महाराज जी, ठाकुर himself spoke of partial incarnation. Thakur himself mentioned Thakur in partial incarnations like Yogananda ji and so many Swami ji and others. He mentioned शिव के अंश थे, स्वामी जी के लिए कहते थे, और किसी को शायद राधा का अंश भी बताए थे, ऐसा कुछ है ना, राधा का अंश। प्रेमानंद जी। तो आप मान लीजिए इसको, आप डिस्कस क्या करेंगे, हम क्या समझते हैं इस चीज को? हाँ जी महाराज। ठीक महाराज, प्रणाम। हाँ, इसको कर नहीं सकते। वो उसमें तो जो बात है वो तुलसीदास की बात बहुत अच्छी है। तुलसीदास को किसी ने कहा कि राम तो जो है वो अंशावतार है, कृष्ण जो है वो पूर्णावतार है। तो कहते हैं कि मैं तो राम को दशरथ का पुत्र समझता था, तुमने अवतार बोल दिया, तब मेरे भक्ति और बढ़ गई। तो भाई जितने आपके जो इष्ट हैं उसको अपना प्रिय सर्वोच्च समझो और उसमें मन लगाओ। ये चक्कर में कि कौन बड़ा है, इससे क्या लेना देना।
ठीक महाराज। जो भक्त है उसके लिए उसका इष्ट जो है वो सर्वस्व। अच्छा सपना, तुम्हारा क्वेश्चन तो हो गया भावमुख का? यस महाराज। अच्छा यस। ओके अब आगे चले। देवाशीष। Yes, Maharaj. Maharaj. Yes, Maharaj. Should I read तुम्हारा the question? हाँ Maharaj ji, that in this text we have read Sri Chaitanya, Lord Jesus, and Sri Ramakrishna were एक मिनट all tasted by God. वेट सर प्लीज वेट। सतीश अच्छा ठीक है कही। चलो देवाशीष। So, सतीश। हाँ जी हाँ महाराज। सतीश यू आर देयर? यस महाराज, यस आई एम हियर। तो तुम्हारा प्रश्न पूछो। मैं पूछूं महाराज? प्रश्न पूछो। हाँ जी महाराज, जी महाराज। महाराज मेरा प्रश्न था कि जो पुरुष विशेष की बात कही है वहां पर पतंजलि योग शास्त्र में, पुरुष विशेष जो होता है वो एक इंडिविजुअल नहीं है, एक स्पेसिफाइड इंडिविजुअल नहीं है। ही इज नॉट स्पेसिफाइड इंडिविजुअल लाइक श्री रामकृष्णा एंड ही हैज नॉट ए फॉर्म। तो हम किस फॉर्म में उसको मेडिटेट कर सकते हैं उसको? अच्छा ये बताओ कि क्या मेडिटेशन, ठीक है समझ गया तुम्हारा प्रश्न। मेडिटेशन क्या केवल फॉर्म का ही हो सकता है क्या? आइडियाज का नहीं हो सकता है क्या? श्री रामकृष्ण ने क्या कहा था? शिव ज्ञान से जीव सेवा। ये तो आइडिया है ना। हाँ जी। शिव ज्ञान से जीव सेवा एक तो आइडिया है, इट इज नॉट ए फॉर्म। जी महाराज आइडिया है वो तो आइडिया। नामे रुचि, भगवान के नाम पर का ध्यान कर सकते हैं, आइडियाज का ध्यान कर सकते हैं। करुणा दया इत्यादि जो हैं वो कंसेप्ट्स हैं, तो कंसेप्ट पे ध्यान किया जा सकता है। ये तो हमारा फिजिकल माइंड इतना फिजिकल है, हम अपने आप को बॉडी समझते हैं, तो समझते हैं कि भगवान का भी एक बॉडी रूप होना चाहिए। तो हमने राम बना लिया, कृष्ण बना लिया। अरे भगवान का क्या राम कृष्ण रूप होता है क्या? वो तो सर्वव्यापी भगवान है। यतीश्वरानंद जी कहते थे मेडिटेट ऑन ऑल परवेडिंग कॉन्शियसनेस। तो जो भी आते थे दीक्षा के लिए उनको मंत्र देते थे। ठाकुर का मंत्र दिया, राम का, कृष्ण का दिया, लेकिन कहते थे मेडिटेट ऑन ऑल परवेडिंग कॉन्शियसनेस, सर्वव्यापी परमात्मा का ध्यान करो। जो राम जो है वो क्या है? राम जो घट में बैठा, जो राम जो जगत प्रसेरा, जो राम दशरथ का बेटा, वही राम सबसे न्यारा। राम जो है वो दशरथ के बेटे भी हैं और सब संसार में व्याप्त होकर बैठे हुए हैं। तो हमको कभी ना कभी तो ऐसी मानसिक स्थिति आनी चाहिए कि जब हम आइडियाज को सोच सकें, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी कर सकें। तो गुण ध्यान होता है, रूप ध्यान होता है, उसके बाद में गुण ध्यान होता है। और नहीं तो फिर वचनामृत पढ़ने की क्या आवश्यकता? श्री रामकृष्ण के गुणों का इतना डिटेल चिंतन करने की क्या आवश्यकता? अगर रूप का ही ध्यान करना है तो रूप का, दाढ़ी का ध्यान कीजिए, उनके कपड़े का ध्यान कीजिए, उनकी आंखों का ध्यान कीजिए, बस और कुछ नहीं करना। ये ध्यान का कंसेप्ट जो है ना, उसको जरा चेंज करना पड़ेगा। आनंद की खोज मेरी किताब में ध्यान पर एक बड़ा आर्टिकल है, उसको आप देख लीजिएगा। तो तात्पर्य यह है कि ध्यान जो है वो कई प्रकार के हो सकते हैं, और पुरुष विशेष यानी उसमें सद्गुण विशेष है, वो एक आत्मा है। पुरुष यानी आत्मा है और उसमें विशेष गुण है। उसमें कर्म टच नहीं करते, उसमें क्लेश नहीं होते, उसमें सारा ज्ञान होता है। तो इन कंसेप्ट्स को ध्यान करना पड़ेगा। महाराज ठीक है, जो जी महाराज जो थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन हो सकता है, कोई बात नहीं। महाराज जो जी महाराज क्या महाराज जो पुरुष विशेष में जो गुण होते हैं,
पुरुष विशेष में जो गुण होते हैं वो एक स्पेसिफाइड इंडिविजुअल में ही होते हैं, स्पेसिफाइड आत्मा में ही है, बाकी आत्मा में नहीं है। जैसे नहीं है, बाकी आत्मा में नहीं है वो, इसीलिए वो पुरुष विशेष होता है। अवतार आत्मा में तो है ना, अरे जैसे अवतार है उनमें भी अवतार। यहाँ देखो यहाँ पे डोंट कंफ्यूज। जब पुरुष विशेष की बात कर रहे हो तो सांख्य फिलोसफी या योग फिलोसफी की बात कर रहे हो, वहां पर अवतार की बात नहीं है, वहां पर अवतार है ही नहीं। जब अवतार की बात करोगे तो फिर अलग बात करो, उसको मिक्स मत करो। पुरुष विशेष जो है वो वेदांत योग फिलोसफी के अनुसार है, ठीक है? डोंट मिक्स अप द थिंग्स। उसमें गुण और आइडियाज का ही बात की गई है। हाँ, गुण और आइडियाज। हाँ, यू हैव टू मेडिटेट ऑन गुण और आइडियाज। मेरा दूसरा क्वेश्चन था, ये जो निर्कल्प समाधि में मन की मृत्यु हो जाती है, ऐसा कहा जाता है। मन जो है वो मृत्यु जैसा हो जाता है, उसका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाती है। तो फिर वो जब मृत्यु हो जाती है तो फिर शरीर कैसे रहता है, या फिर से उनका जन्म कैसे? वो नहीं रहता है। वो तो शास्त्री कहते हैं कि 21 दिन में शरीर छूट जाता है। यदि आदमी ऑर्डिनरी इवेंट को निर्विकल्प समाधि हो जाए तो 21 दिन में चला जाता है शरीर। उसका दोबारा जन्म नहीं होता, उसका दोबारा जन्म नहीं होता, हमारा दोबारा जन्म नहीं होता उसका। जन्म तो होगा ही, आउट ऑफ क्वेश्चन, जन्म नहीं होगा, मुक्त हो जाता है। निर्विकल्प समाधि के बाद में शरीर छूट जाता है, मृत्यु हो जाती है। पर जैसे श्री रामकृष्ण, उनको भी निर्विकल्प समाधि हुई थी, उनका शरीर वो विशेष अवतारी पुरुष जो है वो जिनमें पावर होता है वो रह सकते हैं, लेकिन नॉर्मल एवरेज आदमी जो है वो निर्विकल्प समाधि के बाद में 21 दिन में उनका शरीर छूट गया। और शरीर इसलिए रहता है कि उनके माध्यम से संसार जगत का कल्याण होगा, इसलिए हो गया। ऐसा कहा गया है जी महाराज जी। अच्छा, देवाशीष। Yes, Maharaj, Pranam Maharaj. Actually, in this text, we have read that Sri Chaitanya, Lord Jesus Christ, and Sri Ramakrishna were all tested by God in many ways, but did not succumb to the temptations. Now, my question is that, Maharaj, we cannot think beyond Sri Ramakrishna. How is it that Sri Ramakrishna is being tested by God? He himself was God. Considered himself, Sri Ramakrishna, God. How can he be tested by another? अच्छा, देखिए, वो आप अगर उनको भगवान मान लोगे तो फिर उनकी जीवनी मत पढ़ना। उनकी जीवनी जो है लाइफ में तो साधक भाव है कि नहीं है? है। श्याम कृष्ण साहब ने अपने शारदानंद जी ने तो बड़ा बड़ा साधक भाव के ऊपर बहुत बड़े आर्टिकल लिखे हैं। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्क्राइब किया है। तो जब श्री राम कृष्ण मानव धारण शरीर धारण करते हैं तो खाते पीते भी हैं। अगर वो गॉड है तो खाएंगे कैसे? खाना पीना कैसे चलेगा ये बताओ? भगवान है वो खाता है क्या? ऐसा होता है क्या? अगर भगवान होंगे तो कुछ नहीं, खाना पीना खाए पी रहेंगे। तो खाते पीते थे, टट्टी जाते थे। तो भगवान क्या टट्टी जाता है? यस महाराज। अच्छा, अवतार लीला। अगर भगवान मानोगे तो कुछ नहीं हो सकता, वो साधक मानना पड़ेगा। और साधक मानने के बाद में फिर सारी की सारी प्रॉब्लम होगी, टेम्पटेशन भी होंगे, टेम्पटेशन को विजय भी प्राप्त करेंगे। अब पेट में दर्द भी होगा, कैंसर भी होगा। भगवान हो गए, कैंसर होता है क्या? तो ये बात छोड़ दीजिए, कर दीजिए। जब बात करेंगे तो उसको साधक मानना पड़ेगा, सिद्ध पुरुष मानना पड़ेगा, ऐसा भी मानना पड़ेगा। But Maharaji, when he took the initiations, we were learned that Sri Ramakrishna Purna Brahma. We call him Purna Brahma Narayan, Akhanda Brahma. So when he give all these attributes to Sri Ramakrishna, then how he can be tempted, how he can have temptations, come to temptations? This is the
तो राम भी पूर्ण ब्रह्म थे और उनकी सीता को भी रावण हर गया था, तो राम रोते थे सीता के लिए पूर्ण ब्रह्म होते हुए भी। जब श्री राम रो रहे थे तो शिव जी ऊपर से जा रहे थे पार्वती जी के साथ में, नीचे सीता राम 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 जो है वो सीता सीता रो रहे थे और वृक्ष को बोल रहे थे तू सीता है तू सीता है। दिमाग खराब हो गया था राम का। ऊपर से शिव जी ने क्या किया, हाथ जोड़ के प्रणाम किया, जय सच्चिदानंद। शिव जी ने उनको वैसा नहीं देखा, जय सच्चिदानंद करके ऊपर से प्रणाम किया। उन्होंने उनका बाहरी रूप नहीं दिखा, रोग में दुख में डूबे हुए राम को नहीं देखा। तो भाई इस दृष्टि से देखना पड़ेगा। अच्छा अच्छा महाराज जी, ओके। तो आपको गुरु ने ये कहा कि देखो ये भगवान जो है ये अपने ठाकुर जो है तो उनका जो बाहरी रूप है उसको न देखो, वे सच्चिदानंद स्वरूप है। ही इज प्योर ब्रह्म, प्योर कॉन्शियसनेस। उसको इस दृष्टि से सोचो, उसका बाहरी रूप को मत देखो। ऑर्डिनरी प्लेन के लिए करते हैं, लेकिन ऊपर स्तर पे ठाकुर खुद भी तो बोलते हैं ना, अचानक बोल रहे हैं मेरे को पेट में दर्द है, उसके बाद अभी बोला ना, अभी तुरानंद ने कहा कि आपको कोई तकलीफ नहीं है, तो कह रहे तेने पकड़ लिया। श्री रामकृष्ण तो भगवान के सिवा और है क्या? महाराज जी यहाँ पे सवाल ये उठता है क्वेश्चन महाराज जी, मेरा एक इसी के अंदर सप्लीमेंट है कि जब गॉड ईश्वर एक है, राम को हम ईश्वर समझते हैं, राम कृष्ण को ईश्वर समझते हैं, तो हाउ गॉड कैन ट्रेस बाय हिमसेल्फ? हो गया। यस यस महाराज, यस हल आवाज आई? हाँ अब आई। दिलीप भाई क्या बोल रहे हो? हाँ महाराज, मेरा सवाल यह है, ईश्वर एक रूप अनेक, राम बोलो। नीचे भी थे, राम ऊपर भी थे, राम ने बोलो। क्यों आवाज आ रहा है कि नहीं मेरा? महाराज आवाज मेरा आ रहा है कि नहीं? बीच में आता है चला जाता है। हाँ इंटरनेट ठीक नहीं है। आ रहा है जी महाराज, मेरा ये कहना है, आ रहा है जी जी, मेरा सवाल है, रूप एक ईश्वर एक रूप अनेक, तो जब राम नीचे थे और सीता के लिए बड़े व्यथित हो रहे थे, तो ऊपर से देखने वाले भी राम ही थे। तो देखो, हाँ, तब तो तुम भी राम हो, मैं भी राम हूँ। That's right. जी, ये सभी राम है, फिर आगे बातचीत नहीं होगी। तुम भी राम हो, मैं भी राम हूँ, सभी राम है, फिर बातचीत नहीं होगी। आगे चलो आगे क्वेश्चन पढ़ो जी। किसका, मेरा पढ़ना है क्या? सर महाराज जी, मेरा क्वेश्चन देवाशीष का एक और क्वेश्चन है। महाराज 3 क्वेश्चन खत्म हो गया? नहीं, एक होगा, दूसरा है महाराज जी, that Ishwar kotis are born for the good of the world and hence they are able to function on the ordinary plane with the knowledge and power of higher plane. What are ordinary planes and higher planes? Is it the Sara Chakra you told last time? No. Bodily plane we can understand, isn't it? Yes. तो खाना पीना है, जो सोना है, ओके। और हायर प्लेन है, we remain always in the consciousness of God everywhere. अच्छा, ठीक है। हाँ, तो वो खाना खाते हैं तो खाने के जैसा खाते हैं, और मिर्ची होगी तो कहेंगे मिर्ची है, इसमें नमक नहीं है, ये भी बोलेंगे। अच्छा। लेकिन जब बाद में आगे जाएंगे ऊपर कॉन्शियस लेवल, ऊपर हायर लेवल में, तो सब के ऊपर चले जाएंगे। They can live at that level also, they can live at the lower level. From higher level, can you work the ordinary work of every day? Yes, they can. They can take their mind at the higher level. Then they don't worry about food. They don't worry about anything. ये दुनिया जो है वो दूसरे प्रकार से देखती है, हमारी तरह नहीं देखती है। वो entirely different idea हो जाता है।
मतलब उस लेवल में रह के कोई काम एवरीडे काम कर सकते हैं अपना जो ऑफिस जाना। ये तो मैंने कहा तो नीचे आना पड़ता है उसको। हाँ ठीक है महाराज। नीचे आए बिना काम नहीं हो सकता। लेकिन वो अपनी इच्छानुसार ऊपर जा सकते हैं। अच्छा महाराज जी, ओके महाराज जी। महाराज जी थर्ड क्वेश्चन है, दैट इज द आइडियल आल्सो। हमको भी ऐसा होना चाहिए कि अपनी इच्छा से ऊपर चले जाएं और नीचे काम। हाँ महाराज जी समझ गए, थैंक यू महाराज जी। महाराज जी थर्ड क्वेश्चन था, पढ़ू महाराज जी। थर्ड the physical personality is the third question is the physical personality is unreal, but behind such personality there is mind and soul. Till the mind is illumined, it is liable to be afflicted by sorrow. Seeing this sorrow in others, illumined soul tries to remove it. Even then they themselves are beyond sorrow. My question is, will the illumined souls have to enlighten us? Like Swamiji says that sorrows, miseries are because of ignorance. That means to remove sorrows or miseries, the illumined soul will have to remove our ignorance. For example, a bereaved father came to Sri Ramakrishna direct from the cremation ground. How the sorrow was removed? Was he illumined? Holy Mother cried, embracing the bereaved mother who lost her child. Was the woman illuminated? Without illumination, can the sorrows, miseries go away? देखो, भूख लगी है तो भूख लगी है तो क्या मेरे को ये इस हाईएस्ट लेवल पर पहुंचना पड़ेगा कि मैं आत्मा हूं, मुझे भूख नहीं है? भूख लगी है तो मैंने खाना खा लिया। किसी को दुख हुआ, मेरे बच्चे की मृत्यु हो गई, तो माँ ने रो के उसकी सांत्वना दे दी, मैटर खत्म हो गया। अच्छा। उनको हायर लेवल ले जाने की क्या आवश्यकता है? टेम्परेरी लेवल में भी उन्होंने टेम्परेरी दुख दूर कर दिया। हाँ महाराज जी, यस। परमानेंट तो करना है तो उनको वो हायर लेवल पे ले जाना पड़ेगा। अच्छा महाराज जी, अच्छा। लेकिन टेम्पररी लेवल पे दुख दूर करने के लिए आवश्यकता नहीं है, उसी समय सांत्वना दे दो। ओके, यस महाराज जी, प्रणाम। यस महाराज जी, ठीक है महाराज जी। थैंक यू महाराज जी। नमस्ते महाराज जी, आई एम श्रीमयी। भाई महाराज जी, हुआ देवाशीष? Yes, Maharaj ji, I got it, Maharaj ji. Thank you. महाराज जी, सॉरी टू डिस्टर्ब, बट मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती थी, अगर मेरा सवाल अभी लिया जा सकता है, क्योंकि मुझे थोड़ा इंटरेस्ट था फ्लैग होइस्टिंग अटेंड करने में। बोलो। हाँ महाराज जी, तो मेरे दो जनरल सवाल थे। एक था, स्वामी जी राइट्स टू अलसिंगा इन हिज लेटर। यस महाराज जी, मैं बोल रही हूँ। हाँ, कंटिन्यू करिए। अच्छा, ओके। तो these both are general questions. Swamiji writes to Alasinga in his letter, "My child, what I want is muscles of iron and nerves of steel, inside which dwells a man of the same material as that of which the thunderbolt is made. Strength, manhood, Kshatriya, Virya, Brahma Teja plus Brahma Teja is what Swamiji wants." But Swamiji also says to Swami Akhandananda, the more heart you will be able to manifest, the greater will be the victory you achieve. So my question is, to live a good and substanceful life, which is contributory, moral and spiritual, we need a beautiful combination of head and heart. How to achieve this good combination? And according to you, in our present times, who are the people who are good examples of this nice combination of head and heart? Was I audible?
महाराज का बैंडविड्थ लो है, तो आई थिंक ही मे हैव डिफिकल्टी, बट पता नहीं उनको सुनाई दिया कि नहीं। अब ठीक है? हाँ महाराज, ठीक है? हाँ Yes, महाराज, महाराज। ठीक है। यस महाराज। Muscles of iron, nerves of steel, intellect of the Shankara and heart of the Buddha. ये स्वामी विवेकानंद ने आदर्श दिया है। और हम जब लड़के थे, जवान थे, शुरू में पढ़ा, तो ये हमने आदर्श बनाया था। एक्सरसाइज करते थे, ध्यान करते थे, और उसके साथ में साथ लोगों की सेवा इत्यादि भी करते थे। These are the ideal for all youth. तो इसमें हाउ का प्रश्न नहीं उठता। You have to enlarge your heart. सेवा करिए दूसरों के लिए, दूसरों की सेवा करना पड़ेगा, उनकी गरीबी देखना पड़ेगा, उनको अपना खाना जो है उनको देना पड़ेगा। इस प्रकार का एक्सपीरियंस करने से तब आपको पता चलेगा हृदय कैसा है। बच्चे के लिए, खुद के बच्चे, खुदले माँ बाप के लिए तो हम रोते हैं, लेकिन अगर आप झोपड़ी में जाएं तो वहां पे बहुत सारे लोग हैं जो आधे पेट रहते हैं। उनके लिए अनुभव करना पड़ेगा। हाउ अनुभव करना पड़ेगा? अरे तुम अपने बच्चे के लिए, अपने माँ बाप के लिए अनुभव कर सकते हो, दूसरे के लिए अनुभव नहीं करते। ये निस्वार्थता नहीं है, हमारा स्वार्थ है। अनसेल्फिश होना पड़ेगा, समझे? यू हैव टू बिकम अनसेल्फिश। जी महाराज जी। हाँ, ये है कि सेवा करना पड़ेगा, अनसेल्फिश होना पड़ेगा, भगवान से प्रेम करना पड़ेगा। These are the ways in which you can do it. जी महाराज जी। तो बहुत भी कहते हैं कि take always the position of a giver. Give love, give help, with what little you can, but keep out barter. ये बार बार स्वामी विवेकानंद कहते हैं। So this is the very theme of Swami Vivekananda is develop heart and head both. तो इंटेलेक्ट पढ़ाई करोगे, लिखाई पढ़ोगे, इंटेलेक्ट को बढ़ाओगे, और इसके प्रकार सेवा भी करोगे, निस्वार्थी होगे। ये दोनों करना पड़ेगा। जी महाराज जी। ओके महाराज जी, हाँ, दूसरा सवाल जो है, any situation or matter in our lives can be viewed from multiple perspectives. Viewed differently, the course of action that should be taken from that point is different. So is there any general thumb rule or guiding principle that we can keep in mind so that we make good decisions? बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, greatest good of the greatest number. These are certain important principles. स्वामी विवेकानंद ने कहा, renunciation and service are the ideal goal. Renunciation and service, make them as the principle of your life. Do good for others, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, greatest good to the greatest number. Okay? जी महाराज जी। जी, thank you. Hi. हाँ जी, प्रणाम महाराज। My first question, how can one realize that God has withdrawn the power given to him or reduced the power? ये स्वामी विवेकानंद का हुआ था, है ना? Yes. तो उसको ये भी पता लगा हो कि how did he know that power had come? तो पावर किसी ने दिया था, उसने पावर ले लिया। स्वामी विवेकानंद ने पावर दिया था, श्री रामकृष्ण ने पावर दिया था, श्री रामकृष्ण ने पावर ले लिया। अब ये कैसे हुआ ये वही जाने बाबा, हम क्या जानेंगे? कैसे उनके पास आया था ये भी हम नहीं जानते। How can we know it? हम तो जान नहीं सकते, it's impossible. Right. The question itself is different. My second question is, what is highest knowledge and only be attained through discrimination, renunciation, love, devotion and purity? अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। आत्मज्ञान। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, ये हाईएस्ट नॉलेज है। वही ज्ञान, भक्ति, विवेक, वैराग्य द्वारा उसी को प्राप्त किया जाता है। जी। This is the only one knowledge we have to stick to it. अहम ब्रह्मास्मि। अरे भाई, अब भक्ति शास्त्र वाला तो होगा कि भगवान के दास बन जाओ। वेदांत वाला कहेगा अहम ब्रह्मास्मि हाईएस्ट है। तो ये अलग अलग उसके ऊपर निर्भर करता है। वेदांत की दृष्टि से आपको मैंने कहा।
राइट। नंबर 4 क्वेश्चन 3 का तो जवाब हो गया। नंबर 4 जीवन मुक्त इज द सांसारिक पर्सन एंड देन दे नेवर कम टेस्टिंग ऑफ बुद्धा एक्सेट्रा क्या हुआ? हाँ, वो तो कर लिया। व्हेन बुद्धा, क्राइस्ट एंड रामकृष्ण एंड अदर्स आर इन रियलिटी ऑफ गॉड, then how the question arises of testing them? देखो, उसका मैंने दूसरे प्रकार से जवाब ये होता है। श्री राम कृष्ण कहते थे कि पंचभूतेर फाते ब्रह्म पड़े कांदे। जब ये महापुरुष जो अवतार हैं, जो भगवान के अंश हैं, भगवान ही हैं, जब वे नीचे आते हैं तो वो उनको शरीर के धर्म पालन करने पड़ते हैं, मन के धर्म पालने पड़ते हैं। और ईसा मसीह को सूली सहन करनी पड़ी थी और अब्राहम को वनवास में जाना पड़ा था। ये जब नीचे आते हैं तो सब उनको करना पड़ता है। तो इसको हाउ का प्रश्न नहीं, अगर उनको भगवान मानो है तो फिर प्रश्न नहीं उठता। तो उनको जब मानना पड़ेगा, नीचे आते हैं, अवतार होते हैं, तो वो सब कष्ट पाते हैं। जी। चौथा जीवन मुक्त is the sanskaric person and then they never come again, while Ishwar Kotis have come in sansar for giving mukti for sansari person. जीवन मुक्त क्या है कि हमारे जैसे व्यक्ति हैं, धीरे 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 प्रैक्टिस महत्व करते 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 एक ऊंची स्थिति पर आ जाते हैं। बाप रे, उसके बाद में वो मुक्त हो जाते हैं। वो तो बोला ना 21 दिन में मुक्त हो जाते हैं। हाँ। लेकिन ईश्वर कोटि जो है ना, वो पहले से ही मुक्त रहते हैं जी। ईश्वर के लेवल के हैं, मालूम, उसके ईश्वर के फ्रेंड हैं। तो ईश्वर जब नीचे आते हैं तो कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ, तुम भी आ जाओ, मेरी मदद करना। जैसे रामकृष्ण देव के साथ मदद किया, उसके बाद वापस उनके साथ चले गए, वापस आ जाएंगे। वो मुक्त नहीं होते, मुक्ति का प्रश्न नहीं उठता। तो ऑल फुल्ली एस्टेब्लिश्ड है, अपनी इच्छा अनुसार आ सकते हैं, जा सकते हैं। पर जो जीवन मुक्त होते हैं वो एक बार जाते तो फिर वापस नहीं आते, ये लिखा हुआ है ना कि दे हैव गॉन फॉरएवर। वो फिर दे आर मुक्त हो गए, जो गॉन फॉरएवर। अच्छा, वापस नहीं आते। पर वो जैसे रामकृष्ण देव के साथ 16 जने आए थे, वैसे ये जो जीवन मुक्त होंगे उनको कभी आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या उनको बुलाया नहीं आना पड़ेगा? जीवन मुक्त को आने की जरूरत नहीं पड़ेगी जी। लेकिन स्वामी विवेकानंद जैसे लोग हैं तो श्री राम कृष्ण फिर आएंगे तो बुलाएंगे, चलो चलो तुम वापस आ जाओ हमारे साथ में। श्री राम कृष्ण के साथ में 5-6 ईश्वर कोटि थे जी। तो वो फिर वो चले जाएंगे। जब वापस रामकृष्ण फिर से आएंगे तो उनको बुलाएंगे, चलो चलो मेरे साथ चलो, तो आ जाएंगे। ये उनके दोस्त हो गए। हाँ, ये उनके दोस्त हैं जी। और बाकी जो है उनके भगत हैं। Next question. Will it be possible that we have seen Ma and Thakur in our childhood, but we could not recognize them? As Girish Chandra Ghosh has said, I have seen you before when he was seriously ill in his youth. अरे हमारा जन्म हुआ उसके पहले तो माँ का शरीर चला गया था। हमारा जन्म तो हुआ ना 1939 में 41 में, तब तक तो माँ का शरीर चला गया था, नहीं देखा होगा हमने। चलो, पर हमने माँ के महाराज व्हाट आई वांट टू एक्सप्रेशन कि हम सपने में माँ को देखा होगा हमने बचपन में, पर हमने कभी पहचाना नहीं होगा, इसलिए हमें मालूम नहीं है। कैन बी से लाइक दैट? स्वप्न की बात हम कैसे बताएं? अरे स्वप्न की बात कैसे बताएंगे बाबा? स्वप्न कौन क्या देखा हमने, कौन जानेगा? अब तो माँ के बहुत सारे फोटो हैं, चला देखो, अगर स्वप्न की याद आ जाएगी तो फोटो देख लेना, उसमें लगे देखा था जी। Next, how is it possible to learn and observe the essence of the teaching of all great men and digest them and put them into practice in a short span of life? I have heard that it is not necessary to learn the unlimited knowledge and wasting time. One should just stick to a particular faith.
नहीं तो क्या प्रश्न क्या आपका? जी प्रश्न क्लियर नहीं है। सब कुछ ज्ञान, इतना सारा ज्ञान करने की जरूरत नहीं है, एक चीज को पकड़े रहो बस, खत्म हुई बात। अरे ये इतनी रिट्रीट करने की भी आवश्यकता नहीं है, एक बात पकड़ लो और चले रहो, लगे रहो बस। और लाटू महाराज ने तो ज्यादा कुछ पढ़ा नहीं, ठाकुर ने बोला जो उस बोले को उसको पकड़े रहते थे बस उन्होंने। जी नहीं, ये जो यहाँ पे आर्टिकल में लिखा है वो मैं पढ़ रहा था। आर्टिकल में लिखा है, one should absorb the essence of the teachings of all great men. हाँ बोलिए, आगे चलिए, पूरा आगे पढ़ो। One should absorb the essence of the teachings of all great men. They show us the path. We have to digest them and put them into practice. तो अब ऐसा है कि डाइजेस्ट करोगे तो वो चीज वही आएगी। स्वामी विवेकानंद ने एक प्रकार से बात कही है, श्री रामकृष्ण ने थोड़ी सी अलग प्रकार की है, माँ शारदा ने कुछ कही है। उसको डाइजेस्ट करोगे तो अंत में ऐसी बात आएगी जो दोनों में कहीं विरोध नहीं होगा। ठीक है जी जी। तो जितना कर सको उतना करो बस, और ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। जी जी। Is middle path being a way of realizing God? Then what is the extreme vairagya of Jainism? Which is faster to realize God? Which one is faster to realize God? जितने भी मार्ग है ना उसमें तीव्रता चाहिए। और जैन धर्म में एक प्रकार का जैन मिसअंडरस्टूड किया गया है, उसमें ध्यान को उच्च प्रकार का तप माना गया है। हम मानते हैं उपवास करना ही तप है, लेकिन जैन धर्म को ठीक से पढ़ो, उसमें ध्यान को उच्चतर तप देने, ध्यान भूखे रहने से ज्यादा तपस्या, शारीरिक तपस्या से ध्यान को बहुत उच्च कोटि का तप माना गया है। वो समझते नहीं है इसलिए प्रॉब्लम होती है। जैनिज्म इज मिसअंडरस्टूड। राइट। एंड बाहर की बात देखते हैं लेकिन अंदर बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं, महत्वपूर्ण बातें हैं उसमें। जी। उसको आप ठीक से पढ़ो। कोई भी बात हो, कोई भी मार्ग हो, इंटेंसिटी के साथ, निष्ठा पूर्वक, सिंसियरिटी के ऊपर निर्भर करता है। तो जैन लोग हैं उसी मार्ग से, अपने मार्ग से जाके प्राप्त करते हैं। तो उसको आप यूँ कैसे कहते हो कि एक्सट्रीम है वो उनका मार्ग है, वो भी मिडिल पाथ है। वो उनका मार्ग, वो तुम जानो उनसे क्या मिडिल पाथ, तुम मिडिल पाथ करते रहते हो। वो उनका अपना मार्ग है और अपने मार्ग से वो आगे चल रहे हैं और प्राप्त कर रहे हैं जो प्राप्त कर रहे हैं। जी। My next question is, how sympathy is egocentric and not spontaneous? Sympathy cannot be calculated thinking like I have to do sympathy at a particular time, place with a particular person. It is always spontaneous. वो क्या है कि एक वहाँ पे एक सेंटेंस है, वो सेंटेंस को आपको ठीक से देखना पड़ेगा। एक मिनट। सिंपैथी का एक पोर्शन है, वो तुम्हारे पास है, पढ़ो। मैं क्वेश्चन फिर से पढ़ूं? हाउ सिंपैथी, नहीं, सिंपैथी का पोर्शन जहां से तुमने लिया है उसको मैं पढ़ रहा हूँ। Our sympathy is egocentric and not spontaneous. There is no bargaining in the human souls. Out of their realization, the spirit of a service is born. ये है बुद्ध के ऊपर है। बुद्ध annihilation etc. Yes, it is. अगर annihilation होता तो उनमें ज्ञान, joy, peace, compassion कैसे होता? Men of realization are very compassionate. It is transcendental consciousness that made Buddha never waver from consciousness. Compassion. हमारे जो प्रेम है ना, कंपैशन, दया जो है ना, तो एक आदमी मिल गया तो उसके ऊपर दया हुई, हमने दे दिया।
लेकिन आगे जब जाएंगे तो दूसरा मिल जाएगा तो करेगा, लगेगा अरे अभी तो पैसा बाकी हमको ट्रेन में जाना है, पैसा चाहिए, हम नहीं देंगे पैसा। एक आदमी को कंपैशन पैसा हो गया, हमारी हा कितना गरीब है उसको दे दिया, ये अहंकार से प्रेरित है, मैं कंपैशन दया कर रहा हूँ। लेकिन जो महापुरुष है इनकी होती है ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियसनेस दैट मेड बुद्धा नेवर वेवर फ्रॉम कंपैशन। वो ऐसी कॉन्शियसनेस होती है कि वो एक जानवर को बचाने के लिए अपना शरीर देने के लिए भी तैयार है। वो नेवर वेवर, वो कभी भी कंपैशन से, अपनी जो दया है, करुणा से, उसमें कभी भी परिवर्तन नहीं होता। हमारी ईगोसेंट्रिक कंपैशन है, हम करेंगे, लोग कहेंगे अरे अरे ब्रह्मेशानंद जी बड़े दयालु हैं, और दूसरी जगह जाएंगे वहां दया नहीं कराएंगे, पैसा जो है बचा के रखेंगे बैंक में। हमारी कभी कंपैशन जो है वह इस प्रकार की है, इसी की बात वो कह रहे हैं। Our sympathy egocentric and not spontaneous। और बुद्ध वगैरह की तो अपने स्वभाव से है। There is no bargaining in element souls। जो अवतारी पुरुष हैं, जो ज्ञान प्राप्त होते हैं, वो सोचते नहीं हैं कि मैं कृपा करूं कि नहीं करूं। उसके बाद आउट ऑफ देयर रियलाइजेशन द स्पिरिट ऑफ सर्विस इज बॉर्न। उनकी जो स्पिरिट ऑफ सर्विस है वो साक्षात्कार के साथ होती है, समस्त प्राणियों को वे अपना समझने लग जाते हैं, इसलिए। ठीक है, हुआ? राइट महाराज। ओके, एंड लास्ट क्वेश्चन, is sorrow and sympathy having no place if the soul is illumined? ये इसी का illumined, तो क्या होगा? तो sorrow and sympathy दोनों ही नहीं रहेगा। कहाँ रहे, कैसा कैसा कर रहे हैं? अभी तो पढ़ लिया उसको, अभी हमने यही तो पढ़ा है। Our sympathy is ego saying there is no bargaining in the element soul। Yes। Out of realization the spirit of service is born। तो कहाँ पे है, कहाँ से लिया तुमने? नहीं, ये मेरा सवाल था हमारा कि sorrow and sympathy having no place if the soul is illumined। No, sympathy का sympathy तो रहेगी उसमें। हाँ, नहीं, there is no bargaining in the illumined souls। हाँ, बार्गेनिंग यानी सौदेबाजी नहीं है। हाँ, मैंने तुम्हारे ऊपर कृपा की है, हाँ, तो तुम भी नेक्स्ट टाइम मेरे को देख लेना। अच्छा, ऐसा नहीं है। नो बार्गेनिंग, बट sympathy will always remain there, sympathy and sorrow। Right। Okay, now one question it is here that binding of tension and then release it। We build the tension and then we release it। क्या हुआ? Is it happiness? Is it happiness? महाराज, हम खुद टेंशन पैदा करते हैं और उसको रिलीज कर, हम खुद अपना टेंशन पैदा करते हैं, हम खुद टेंशन पैदा करते हैं और फिर उसको रिलीज करते हैं, और जब रिलीज हो जाता है टेंशन तो हमें बड़ी खुशी मिलती है। तो वेदर इट इज अ हैप्पीनेस। अब तुम जानो बाबा, मेरे को टेंशन हुआ कि मेरे पास बड़ी गाड़ी होना चाहिए, मैं बड़ा परेशान हूँ पड़ोसी के पास से, और कल मेरे को वो गाड़ी मिल गई, आई बिकम वेरी हैप्पी। वेदर इट इज अ हैप्पीनेस। अब तुम जानो, हम क्या जाने भाई? अरे हम क्या जानेंगे इसको? ये तुमको लगती है हैप्पीनेस कि नहीं लगती है, तुम जानो ना। महाराज, हमने तो कार चाहिए नहीं, हमारे पास कार चाहे है भी नहीं, हम नहीं जानते। हमको तो कोई टेंशन नहीं है, टेंशन तो हम क्रिएट करते हैं। ये तुम्हारे कंसेप्ट हैं आजकल के जमाने के, बिजनेस डिपार्टमेंट के कंसेप्ट हैं, बिजनेस जगत के कंसेप्ट। नहीं, ये सुनो, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हैप्पीनेस जैसी एक चीज है जो बाहर किसी भी वस्तु पर निर्भर नहीं करती। मानव का वास्तविक स्वरूप आनंद है, आनंद स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाना है। ये बाहर वस्तुओं पर से रहना, उससे टेंशन करना और उसको दूर होना, इससे हैप्पीनेस का कोई लेना देना नहीं है। आनंद स्वरूप है हमारी आत्मा, उसमें प्रतिष्ठित हो जाओ बाबा। ये चक्कर में मत पड़ो, इसमें तो कोई सुनेगा नहीं हमारी बात। ठीक है,
जी महाराज प्रणाम। चलो देवाशीष हो गया, दिलीप हो गया। चलो अब आओ सुबीर, सुबीर मजुमदार। सुबीर महाराज जी, आई वांटेड टू से कि ये आर्टिकल बहुत ही बढ़िया था महाराज जी। व्हेन वी रीड स्वामी जी वी फील नो सेंटेंस इज नॉन एसेंशियल, नथिंग कैन बी लेफ्ट आउट। और इस आर्टिकल में भी कुछ ऐसा ही लगता है। तो हाँ, मेरा पहला सवाल महाराज जी, all the incarnations had to face temptations and challenges during their sadhana. Even us ordinary devotees do seem to face challenges as we do our sadhana. Now, why do the challenges become more and more as we do more and more sadhana? Is it because we become more sensitive to our own faults? Now, you don't make comments like this. The last comment is not necessary. Your question ends there. Why do we make sadhana? It is very simple. When you are studying for high school, you are having some difficulties. But when you do PhD, your difficulties increase. जी महाराज। So it is very natural. जी जी जी। When you go to even studies, usual studies, etc., you will have difficulties. Even संसारिक जीवन में भी हायर लेवल पे जाओगे, ज्यादा पैसा कमाना होगा तो ज्यादा संघर्ष आपको करना पड़ेगा। जी जी। उसमें प्रॉब्लम भी ज्यादा होगी। जी मैं समझ गया। दूसरी बात यह है कि उसमें तो टेंशन ऐसे आते हैं कि जैसा कहा गया है कि उसमें सिद्धियां, आगे जाओगे तो सिद्धियां आएंगी, बहुत डिफिकल्ट हैं। जी। नाम यश की बात हो जाएगी। जी महाराज। यहाँ लोगों ने कहा अपना ये अपने ये जूम मीटिंग हो रही है तो हमारे मन में लगने लगा है कि लोगों को कैसा लगता है, लोग हमारी प्रशंसा करते हैं कि नहीं है करते हैं। तो ये सारे की बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं, जैसे जैसे हम आगे जाएंगे वैसे वैसे और अधिक आती जाएंगी, सिद्धियां आएंगी, देवता लोग हमारे डिस्टर्ब करने का प्रयत्न करेंगे। ये सब योग शास्त्र में भी बताया लिखा हुआ। जी जी ठीक है महाराज जी। सेकंड श्री रामकृष्ण बोलते हैं ना, श्री रामकृष्ण बोलते हैं माँ माँ थूकता हूँ, है ना, बार बार बाबड़ा थूक रहे हैं श्री रामकृष्ण। तो क्या कहते हैं बाद में, कहते हैं माँ आई मेरे को नाम यश देना चाहती थी, मैंने थूका। जी जी। सेकंड। ठीक है महाराज। हाँ। द सेकंड क्वेश्चन महाराज जी, is it right to say that just as an incarnation allows us to peep into the ultimate reality, the disciples or the antaranga devotees allow us to get a peep at the incarnation himself? As an example, we can see in the book Sri Ramakrishna as we saw him. So this again is not a question. This is again an observation. So okay, you can go ahead with it. जी। Third. तो मतलब that it is true that you can have, these are comments. जी जी। These are comments, and then okay, you can get, whenever you read anything, you get insight into Sri Ramakrishna. वो तो है ही। Right. These are comments, not question. जी। We know the master practiced Hatha Yoga to sustain his frail body because it had to harbor such great spiritual powers for the welfare of the world. What Hatha Yoga did he practice and why did he forbid us to do the same? ऐसा है कि श्री रामकृष्ण ने एक तो जब पूछा था वो क्या है कि सांस उनका रुक जाता था तो वो कहते थे कि अगर मेरा सांस रुक जाए, सो रहा हूँ और सांस रुक जाए तो मेरे को जगा देना। और जब जगा देते थे तो ठीक है, अच्छा किया, क्योंकि मैंने इतना सांस रोका है, इतना प्राणायाम किया है कि मेरी आदत हो गई है। तो एक तो प्राणायाम किया होगा,
दूसरा बैठे होंगे, मैंने आसन किया होगा, बोलते थे खट 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 करके मेरा सारा शरीर जो है वो ब्लॉक हो जाता था, मैं हिल नहीं पाता था। ये दो की तो बात हम जानते हैं, इसके बारे अलावा हम कुछ नहीं जानते। और ये उन्होंने किया था, उसमें दो इंटरप्रिटेशन है। एक तो ये है कि उन्होंने किया था क्योंकि करना था, और दूसरा ये है कि वो अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए भी कर रहे थे। इस आर्टिकल में भी यतीश्वरानंद जी ने जो लिखा है उसमें ये कहा है कि उससे वो इतनी प्रैक्टिसेस करनी थी, इसलिए उनको शरीर को सबल रखना चाहिए। लेकिन इवन यदि प्राणायाम और ये भी करते तो भी उनका बॉडी इतना फ्रेल नहीं था जितना हम समझते थे। भले दिखते थे, फिजिकली वीक दिखते होंगे, लेकिन उनमें, और इसलिए उन्होंने कहा स्वयं को कि हम क्या है कि वे बॉर्डर लाइन कर नहीं पाएंगे कि कहाँ तक करना चाहिए, कहाँ तक करना नहीं चाहिए, और बॉडी कॉन्शियस हो जाएंगे। इसलिए हठियों को कभी हमारे यहाँ पे एनकरेज नहीं किया गया, बिकॉज इट ब्रिंग्स बॉडी कॉन्शियसनेस। ओके, राइट, यस यस यस, ठीक है महाराज जी। लास्ट क्वेश्चन महाराज जी, last question Maharaj ji, which is unrelated to the article. The society, especially our close friends and close relatives at large, expect us to be in touch with them. But as we strive in our spiritual life, it becomes very difficult to mix with them, as we don't have spiritual as most of them don't have spiritual inclinations, and they are not in the same wavelength. What should we do, as it makes us feel guilty of ignoring them? Why do you feel guilty about it? हम तो डॉक्टर थे, तो हम तो मिलते नहीं थे किसी से, और सब लोग हमको चिढ़ाते थे स्वामी जी करके। हमारी किताब में भी स्वामी जी लिख दिया, स्वामी अशोकानंद, अशोक लिख दिया। जी जी जी। तो उनको चढ़ाने दीजिए और चिढ़ने दीजिए। अब संसार को सुखी करके सबको प्रसन्न करके आप कभी स्पिरिचुअल लाइफ लीड नहीं कर सकते, याद रखिए। इट इज इम्पॉसिबल, राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यू कैन नॉट सेटिस्फाई एवरीवन इन द सामान्य संसार में भी नहीं कर सकते, आध्यात्मिक जीवन में तो और भी नहीं कर सकते। जी जी। भगवान को खुश करना है, संसार को नहीं। थोड़ा स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, अनकॉम्प्रोमाइजिंग होना पड़ेगा। जी महाराज जी, जी महाराज जी। शिवानी, प्रणाम महाराज जी। ओके, शिवानी, आर यू देयर? जी महाराज, प्रणाम महाराज। पूछो चलो। हाँ, as said, realized souls are God's instrument. Can we also become Almighty's instrument? Why do you want to become Almighty's instrument? महाराज, आवाज क्लियर नहीं है आपकी। आंसर माय क्वेश्चन। हाँ, ये बताइए कि आप अलमाइटी के इंस्ट्रूमेंट क्यों होना चाहते हैं? ताकि महाराज we can solve the purpose of, समझिए तो। हाँ, so that we can solve the fulfill the purpose of human life. तो पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ, तो ये दूसरा क्वेश्चन भी आपका है, पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ। ये भी बताइए पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ क्या है। दोनों मेजर क्वेश्चंस हैं, आपको जब क्लियर होना चाहिए पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ क्या है। हाँ जी। और गॉड इंस्ट्रूमेंट ऑफ गॉड कैसे होने में क्या है। गॉड रियलाइजेशन इज द पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ। हाँ, तो वो तो आपको साधना के द्वारा ही करना पड़ेगा जी। और इंस्ट्रूमेंट में इसलिए कह रही हूँ कि सो दैट वॉट एवर गॉड वॉन्ट्स फ्रॉम अस वी कैन डू दैट ओनली। हाँ, आपको लड्डू खाने की इच्छा है, भगवान अगर नहीं खाने दे तो आपकी सारी इच्छाएं बदल जाएंगी, आपकी इच्छा पूर्ण नहीं होगी। गिरीश चंद्र घोष जो है ना, उनकी हालत खराब हो गई थी। सामने पानी का गिलास पड़ा हुआ है, वो पी नहीं रहे हैं, पसीना आ रहा है, मुंह सूख रहा है, लेकिन क्यों? भगवान की इच्छा अभी तक नहीं हुई। उन्होंने तो पूरा सरेंडर कर दिया था ना।
गिरीश चंद्र घोष का स्पेशल एग्जाम्पल है। नहीं होती है तो बकलमा दे दो, मीन सरेंडर योरसेल्फ, गिव ऑल योर पावर ऑफ अटॉर्नी, आई विल डू एवरीथिंग फॉर यू। देन वो खाना पानी का गिलास है वो पी नहीं रहे, बच्चा मर गया, चुपचाप शांत, एक प्रभु की इच्छा है, मैं क्या करूं? क्या तैयार हो? सरेंडर टू गॉड है ना, ये हाईएस्ट साधना, वेरी वेरी डिफिकल्ट। अपनी इच्छा को पूरी तरह त्याग करना, कोई भी इच्छा नहीं, मैंने कहा ना पानी पीने की भी इच्छा नहीं, उनका पुत्र की मृत्यु हो गई तो भी चुप में कुछ नहीं कर सकता, ये प्रभु की इच्छा है, ठाकुर की इच्छा है। मैंने अपने को पूरी तरह शरणागत किया, और वो किसी मार्ग से ले जाए, अच्छे मार्ग से ले जाए या बुरे मार्ग से ले जाए, कष्टप्रद मार्ग से ले जाए या अच्छे मार्ग से ले जाए, इट इज नॉट इजी, इट इज द हाईएस्ट थिंग, रिमेम्बर। और यतीश्वरानंद जी और सब लोग कहते हैं कि ये शरणागति जो है ना, इट कम्स आफ्टर हाईएस्ट सेल्फ एफर्ट। खूब संघर्ष करो, तब लगता है अरे बाप रे ये हमारे बस का नहीं है, भगवान पे तब छुड़ा जाता है, उसके पहले ये शरणागति सरेंडर नहीं आता। कोई अपनी पर्सनल विल नहीं होगी, इट इज नॉट सो इजी। तो फिलोसॉफिकली थ्योरेटिकली जो भी कुछ कहो, लेकिन प्रैक्टिकली इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। अर्जुन ने शरणागत की थी भगवान से, तो भगवान ने क्या करवाया अर्जुन को? उस अर्जुन को सबको मरवाया ना, और तो अर्जुन तो युद्ध नहीं करना चाहता था, इनको मारना पड़ेगा। उसका पुत्र भी मर गया, सब कुछ सहन करना पड़ा क्योंकि उसने भगवान को शरणागत किया। तो पाथ ऑफ शरणागति इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, अनलेस यू कैन गिव अप ऑल योर विल। अपनी इच्छाओं को पूरी तरह त्यागे बिना शरणागति नहीं हो सकती, याद रखो। ठीक है, ठीक है जी महाराज। दूसरा क्वेश्चन भी यही था ना, उसी से रिलेशन था जी। सेकंड क्या है? गुड ह्यूमन, चलो पढ़ो पहले। हाँ, how we can become good human beings. There must be some purpose of life. Renunciation of service. श्री रामकृष्ण, माँ शारदा, स्वामी विवेकानंद के टीचिंग्स को फॉलो करो जीवन में जी। त्याग और सेवा जीवन के आदर्श है, उनको जीवन में उतारने का प्रयत्न। ठीक है जी महाराज। ओके ओके, थैंक यू महाराज। अशोक रहेजा जी, प्रणाम महाराज। हाँ बोलो। ये इसमें लिखा है महाराज कि sages like Narada and Shuka are born with perfect knowledge. पास से बोलो, जोर से बोलो। Sages like Narada and Shuka are born with perfect knowledge without the wheel of Maya. So question is, what is Maya? Is it illusion or a reality? माया, ये प्रश्न है ना आपका? जी, आपका प्रश्न यही। हाँ जी, आप सुन पा रहे हैं कि नहीं? हाँ जी, प्रश्न ये, माया जो है ये भ्रम है या रियलिटी है? देखो, रस्सी पड़ी हुई है, वो आपको सांप दिख रही है। हाँ, तो ये क्यों दिख रही है? भ्रम के कारण दिख रही है ना। जी जी जी। ये जगत जो है वो हमको एक प्रकार से दिख रहा है जी। एक आदमी जो है वो एक युवती को वो प्रेम करता है, और जो साधु है उसको भगवती मान के पूजा करता है। जी महाराज। क्या है ये? मन के भ्रम है। तो जी जी जी। तो ये माया इसी को कहते हैं। ये संसार जो है वो हम एक प्रकार से देखते हैं, कोई दूसरे प्रकार से देखता है। ये सब भ्रम है माया के कारण। जी जी। ठीक है, इसको आप न भी कह सकते हो कि माया जो है वो जब भगवान का जब ज्ञान हो जाता है तो गायब हो जाती है, माया नहीं रहती, सभी जगह ब्रह्म दिखाई देता है। जी जी जी। ये हुआ माया का। ठीक है जी। सेकंड क्वेश्चन। हमारा दूसरा प्रश्न ये था कि इफ आत्मा और ब्रह्मन इज इनसाइड ऑफ ऑल द जीवास, देन व्हाई सम पीपल आर बैड एंड सम आर गुड? तो उसका मन भी तो है, आत्मा ब्रह्म तो है, लेकिन मन का क्या हुआ? मन को तो आपने बोला ही नहीं। प्रत्येक व्यक्ति का मन है तो नहीं है। बिल्ली में भी आत्मा है, तो बिल्ली आदमी तो नहीं हो जाती। हाँ। कुत्ते में भी आत्मा है।
तो प्रत्येक व्यक्ति में आत्मा है, लेकिन उसके साथ में उसका मन है, उसके संस्कार हैं, वो सब कुछ है, इसलिए उसके अनुसार वो अच्छा बुरा बनेगा। केवल आत्मा को क्यों दोष दे रहे? जी जी ठीक है जी महाराज। ओके। अच्छा, अब आइए, कौन आएगा? किसकी पोजीशन है? रीता, रीता। Yes, Swamiji. Yes. The question I asked was on page 186, where Swami Yatishwarananda says, life's whole course should change. Without moral purity, none can progress. In context of that particular sentence, I had asked how to change one's life course from the present situation one is placed in. And the second question, I am trying to attain moral purity, but fail sometimes. How to overcome such failures? You had suggested that I reread that paragraph. I reread it and I have found the answer. So my main question now is that the present life course changes what is going through by having taken Diksha and trying to follow the spiritual path and purify ourselves. Is that the right way? There is a disturbance. I am not able to listen to your last portion. Your main question is now? Now we are already on the path to changing life's course by taking Diksha, by trying to practice many of the moral virtues that that are necessary in order that spiritual practices bear fruit. That is that seems to me to be the right path. But while doing this, we fail sometimes. Like failure are this always stepping stones. Remember, everyone fails. Not that but that does not mean that you go on failing and failing and failing. Earlier you used to fail once, now you are failing twice. Then the next time you are failing 4 times. Now don't do that. If you fail repeatedly, then have penance. तपस्या करना चाहिए. बार बार अगर फेल होता है तो फिर आप एकादशी कीजिए, खाना मत खाइए. इस प्रकार का तपस्या करना चाहिए. If you repeatedly fail, okay? Yes, that is what. Now I'm clear about. Holy company is very important. Remember. Yes, Swamiji, holy company is very important, but other than reading, I mean, in the present circumstances, at least mine, other than reading and seeing and talking, there is no I'm unable to go to the ashram as often as I used to. In fact, last 2 months I haven't gone. Oh, no. That should not do. That will not do. So now, Nivedita. जी महाराज, मेरा पहला प्रश्न तो हो गया. कई क्वेश्चन हो गए. दूसरा जो है मेरा क्वेश्चन था, why power is withdrawn from ईश्वर कोटि पुरुष by divine mother? तो you ask divine mother, why are you asking me? अच्छा, अरे जब काम हो गया ना, काम हो गया है. स्वामी विवेकानंद को पावर दिया, उसका काम हो गया, उसके बाद तो पावर ले लिया. उसके बाद का क्वेश्चन है, होली मदर परफॉर्म पंचतपा यज्ञ टू रिड्यूस ग्रीफ ऑफ पार्टिंग फ्रॉम ठाकुर. इज दिस यज्ञ इज बेनिफिशियल फॉर अदर्स आल्सो? हाउ? आई डोंट नो. यू सी, माँ तो बोलती है, माँ से कहा तो कि भाई जैसे हम लोग मेरा अच्छी আমরা तप करूँ रकम करे छे. माँ ने उसको इम्पोर्टेंस नहीं दिया, लेकिन इस आर्टिकल में यतीश्वरानंद जी उसको इम्पोर्टेंस देते हैं कि उन्होंने ये खुद के लिए नहीं किया, दूसरों के कल्याण के लिए किया. तो ये भी हो सकता है.
अरे ठाकुर ने इतनी कठोर तपस्या की, किसके लिए की? हाँ, हम लोग तो हमारे हम लोगों के लिए है। उनका जो पुण्य है हम लोग तो नहीं कर सकेंगे, उसके लिए उन्होंने श्री राम कृष्ण के डायरेक्ट डिसाइपल्स ने भी जो कठोर तपस्या की है, ये हम लोगों के कल्याण के। ठीक है, अच्छा इसके बाद वाला हो गया है। अच्छा लास्ट ये जो सेंटेंस है ये मुझे नहीं समझ में, इसलिए मैंने प्रश्न पूछा है। व्हाट इज अवतारस अनदर एस्पेक्ट एज वर्ल्ड ऑफ मैनीफोल्ड फॉर्म? मैनीफोल्ड फॉर्म, ये जो आर्टिकल में लिखा है ना कि he saw the in one aspect he manifests himself as all god and goddesses, and another aspect as the world of manifold form. वो अवतार, वो अर्थ क्या है? वो क्या है कि भगवान जो है, जो अवतार, वो क्या है कि संसार के सभी प्राणियों के रूप में भी हैं और विभिन्न देवताओं के रूप में भी हैं। अच्छा ये प्राणी है। पेज नंबर बोलो तो, पेज नंबर लास्ट में ही है महाराज ये। वो तो बुद्ध का आता है, बुद्ध के पहले। बुद्ध के पहले ग्रेट पीपल जनरल स्पिरिचुअल करेंट, उसमें पेज नंबर बोलो ना। पेज नंबर नहीं लिखा मैंने। हाँ 189 towards the end of the first paragraph. One aspect he manifests. अच्छा, he saw the same transcendental being manifested as himself. Shri Ram Krishna, na? He taught Swami Vivekananda and others the reality of all divine form. He broke their one-sidedness. Shri Ram Krishna could not be one-sided. He saw the same transcendental being manifest as himself. He transcends names, forms, and personalities, and is beyond all speech. He saw the same power being manifest in all. In one aspect, he manifests himself as all gods and goddesses, and in another aspect as the world of manifold forms. Other teachers generally stress only one aspect of the reality suited to their own religion. इसलिए श्री रामकृष्ण के पास में जब कोई क्राइस्ट का भक्त आता था तो श्री रामकृष्ण में क्राइस्ट देखता था। ठीक है, श्री रामकृष्ण ने ऐसा नहीं कहा है कि तुम राम की पूजा करो, क्योंकि वो सभी देवी देवताओं के रूप में थे ना। सर्वदेव देवी स्वरूपाय श्री रामकृष्णाय बोलते हैं ना जी। श्री रामकृष्ण का प्रणाम मंत्र में है ओम सर्वदेव देवी स्वरूपाय श्री रामकृष्णाय स्वाहा। तो सर्वदेव देवी स्वरूपा है। तो श्री रामकृष्ण जो है सभी देवी देवताओं के रूप में मैनिफेस्ट हुए हैं। श्री रामकृष्ण वो सर्वदेव देवी स्वरूप हैं। इसलिए जो भी की भी उपासना करे, क्राइस्ट की उपासना करे, तब भी ये सोचो कि ये श्री रामकृष्ण की ही उपासना करे। दैट इज द आइडिया। अच्छा ठीक है जी महाराज, बस हो गया जी महाराज, हो गया। किसी का प्रश्न बचा है क्या? किसी का प्रश्न बचा है? हो गया? बंद करें? बंद करिए जी महाराज। प्रणाम महाराज। ओम शांति शांति शांति। स्थापकाय अवतार वरिष्ठाय शांति शांति। हरि ओम। श्री राम कृष्ण। ठीक है।